everyone. We're all here today on the Jeevan Sathi Gupshup session. अब तक जीवन साथी ने कुछ मल्टीपल गपशप सेशंस कर लिए हैं, रेंजिंग फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स. हम लोगों ने कुछ कपल्स से जनरली बात करी कि उनका शादी का जर्नी कैसा चल रहा है, आफ्टर मैरिज कैसा रहा है, सर्च प्रोसेस कैसा रहा है. देयर हैव बीन सम स्टाइलिंग एंड पर्सनालिटी गपशप सेशंस एज वेल, helping us all on how to dress ourselves when we are going for the first meeting, or what kind of questions to ask people when they're meeting for the first time. And then there have been sessions around how to get better response from the site and so on and so forth. But today is, I think, the one that I'm finding most interesting. Today we have with us दो बहुत ही beautiful couples जिनकी की शादी recently lockdown के period में हुई है. As much as it sounds very impossible and something that we couldn't have thought years back कि lockdown period में शादी करना, wedding पूरी organize करना, families को साथ में लेके आना, beginning from what you might have planned before to what actually you executed, and then living together during this lockdown period. I think वो कुछ beautiful experiences share करने के लिए we have these four lovely people with us. We have Rakshita, Ajay, Sonali, and Mudit. What I would urge is, while all of us are gradually going to join in about another minute, what we will do is we'll hear right from these couples about their introduction. I don't want to tell too much about them because I know they have some beautiful, interesting stories. I know Rakshita would tell about Ajay, and I would want Ajay to tell about Rakshita. क्या आपको इनमें पसंद है और क्या शायद पसंद नहीं है, in the last few days, weeks and months of knowing each other. Similarly, Sonali telling about Mudit, उनको उनमें क्या पसंद है और क्या नहीं. Similarly about, the husband telling about the wife. So yes, I think shall we start here? Do we all have us ready? Can we hear a hello from Rakshita, Ajay, Sonali and Mudit? Hi. Hello everyone. Hello. Great. Rakshita, do you want to start? Yes, first of all, happy Sunday to all of you. And ये तो बहुत ही अच्छा experience है और ये we both are and we all are very excited to have this gupshup session, that to be on Sunday evening. So when it comes to, wedding, that to be in a COVID-19, it is altogether a very beautiful experience, nice, lovely, energetic, positive. When you feel like you love someone and you desperately want to be with someone, आपको किसी के साथ पूरा life spend करना है. First, आपको पता नहीं है कि वो कौन है. दूसरा, आपको वो मिलेगा कहाँ से. तो ये सारी चीजें, from day one to here that हम दोनों साथ में बैठे हैं, वहाँ सोनाली और मुदित साथ में बैठे हैं. So and you, who is helping us, the people like us helping us कि हम कैसे मीट करें and हम अपना जर्नी कैसे बिगिन करें. So I would like to, before starting, a really, really, very thank you to the Jeevan Sathi team, entire team, every team member who is working back behind on, matches and screening in such a way and, helping us to screen our perfect mental disorder partner हमें मिले. Now, because getting a partner in crime and getting a best friend, I think this is something, a really beautiful thing that anyone can do. That you want to spend a life with someone. And really, really thanks to the concept of Jeevan Sathi and the entire team of Jeevan Sathi for this first. Thank you so much, Rakshita. That's very sweet of you. I'm sure the entire team, including me, is super happy looking at happy couples that Jeevan Sathi has been able to bring together. And it is, believe you me, it is of real happiness, the feelings of real happiness that we get when we see smiles on people who've been brought together. Thanks a lot, Ishta. Thanks a lot. So yes, I hope all of us are ready with our coffee, chai, biscuits, जो भी, so that ये गपशप सेशन के साथ साथ हम लोगों का संडे थोड़ा और enjoyable हो जाए. Yeah? Yes.
Cool. Sonali, Mudit, hi. Hello, Isha. Hi. Hi everyone. I hope your Sunday is so far going good. Yeah, it is. And the best part is this evening. Yes, we have a lot of people who are who are waiting to listen to your beautiful story. Of course, I've known some bit of it, so I'm waiting to get on to some of the interesting questions, which I know will get to the prettiest part of those stories. But let's begin hearing from Sonali. Sonali, what would you say about Mohit? क्या आपको उनकी चीज पसंद है? मुदित, I'm sorry, मुदित की क्या चीज पसंद है और क्या चीज नहीं? Okay, let me just start with this thing. I would second Rakshita on this. I would also thank Jeevan Sathi that I have got a Jeevan Sathi. So I would definitely thank jeevansathi.com for this. And then this lockdown, this is like, obviously acting as a positive catalyst to know him more. So, okay, how did I get to I got to that decision of marrying him is like obviously knowing him, all the things, knowing about him, everything, like what I like and what I dislike about him. So obviously the thing that I like about him is the most is him being the honest person from the day one. I should tell Isha from the very day one. I know like everything that has been counted has been like it be lows, it be ups, कुछ भी हो, it was always कि हाँ मतलब ये एकदम honest बंदा है, ठीक है, I can get far with this कि चलो हाँ बहुत ही सच्चा बंदा है, जो भी हो चाहे जितना भी कड़वा सच हो इसमें बोल देना है. So this was the best thing that I like about him. And obviously the people who know him close or maybe not very close even, वो जानते हैं कि मुदित का गुस्सा उसका गुस्सा इससे तो obviously this is something I dislike about him, but obviously a girl changes a guy. Looking forward to it. So looking forward to it. So these are the things. There are many other things which I like and dislike about him. Moving forward in the session, we're gonna discuss them also. Yes, I'm sure we're getting there. Good. So Mudit ki honesty, but Mudit ka gussa. Yeah. Mudit, how about you? How would you put your feelings for Sonali? कि आपको क्या पसंद है और क्या ज़्यादा नहीं पसंद? Like जीवन साथी और ऐसी जो भी मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, मेरा और सोनाली का शुरू से यही रहा है कि मतलब जब हमारी बात होनी भी शुरू हुई थी कि हम इस जगह पे कैसे आ गए, तो लेकिन जीवन साथी का एक टैगलाइन है, जो तुम्हें ढूंढ रहा है वो तुम्हें ढूंढ रहा है, ऐसा कुछ करके टैगलाइन है, जिसके तुम्हें इंतजार है वो तुम्हें भी ढूंढ रहा है. तो वो टैगलाइन भी बहुत कैची है. तो इसलिए शायद भी जीवन साथी पे मैंने भी लॉग इन किया और यही एक मैट्रिमोनियल साइट इस पे किया था और फर्स्ट मैच है ये मेरा, और इसी को ही फर्स्ट टाइम मतलब कोई और किसी से बात नहीं कुछ नहीं, बस इसी के थ्रू फर्स्ट टाइम इससे इंटरेस्ट को इसका भी, और उन्होंने बस वहीं से बात शुरू करी. और जो किक ऑफ हमारा हुआ वो सबसे पहले तो यही था कि मेरा भी ट्विन ब्रदर है और इसकी भी ट्विन सिस्टर है. तो वो हमारा सबसे पहला एक किक ऑफ था, आइस ब्रेकर था. फिर वहां से हमारी बात होनी शुरू हुई, हम आगे बढ़े और धीरे धीरे एक दूसरे को जाने समझे. और उस टाइम मैं ओमान में भी था, तो मैं अलग देश में था, तो हमारा थोड़ा टाइम डिफरेंस भी था, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए टाइम निकाल ही रहे थे जैसे तैसे अपने हेक्टिक लाइफ में से. तो एक होता है एफर्ट्स काम, जो एक दूसरे के लिए एफर्ट्स डाल रहे थे, उस तरीके से हम आगे बढ़े. और हमने फिर 2-3 महीने बाद जब हमारे सारे पेरेंट्स को कुंडली का सारा खत्म हुआ तब हमने बात हमारी पहली बार फोन पे हुई. हमने 2-3 महीने तो बस एक तरीके से चिट्ठियां ही लिख रहे थे. डिजिटल चिट्ठियां. तो इसी से ही बॉन्ड आगे बना. तो इसी दौरान बहुत सारी चीजें हैं सोनाली की जो मुझे पसंद हैं. कोई एक चीज को मैं पर्टिकुलरली बोलूं तो ऐसा नहीं हो सकता. जैसे पजल होता है उसमें जिक्सॉ होता है, तो उसी तरीके से सोनाली आके वो जिक्सॉ में फिट हो जाती है, तो वही एक है. और
कोई ऐसी चीज जो ना पसंद हो तो ऐसा नहीं है, कोई भी चीज ना पसंद होगी तो वो मैं आराम से इसको अलग से बता दूंगा, लेकिन कभी नहीं बताऊंगा। I knew this और answer. सच्चाई के साथ बता देंगे, क्योंकि सच्चाई तो सोनाली ने ऑलरेडी पॉइंट आउट कर दी है। वो तो है ही तो हाँ, वो मैं अलग से इसको आराम से अपने पर्सनल टाइम में हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं, तो किसी के सामने बताने की कोई वो है नहीं। ठीक है, गुस्सा है तो आप शेर हो, गुस्सा तो होता ही है। ओहो That's nice. That's sweet. Congratulations to both of you. बहुत ही, I think it's a beautiful time that you guys are spending with each other, and it's really nice to see marriages happening even during this lockdown, and people getting to their perfect life partners, like you said, jigsaw puzzle की तरह, जैसे जो fit हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसी complementing personalities that are meeting during these lockdown periods as well. Thank you so much. Ajay, shall we hear from you? Yeah, sure. Hi everyone. My name is Ajay, and I am the lucky person who have Rakshita as my wife. Thanks to Jeevan Sathi platform that got us, that gave us that opportunity to connect. So I think positive side तो रक्षिता की बहुत सारी है। मैं हर रोज अमेज होता रहता हूँ कि अच्छा आज ये पॉजिटिव चीज दिख गई, अच्छा अभी भी मैं आई थिंक मैं एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ कि कितनी सारी और पॉजिटिव चीजें आ रही हैं रक्षिता की तरफ से। तो बट सबसे अच्छी जो मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे अट्रैक्टिव चीज लगती है रक्षिता के बारे में, वो ये है कि बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंस है। जो हम कहते हैं ना कि जो EQ होता है, EQ इज लाइक सुपर डुपर हाई, और उससे मुझे खुद डेवलप करने में काइंड ऑफ बहुत हेल्प मिली है। और मैं तो ये कहूँगा कि जिसे कहते हैं ना कि पार्ट सेकंड, अपना कंप्लीट पार्ट मिलना जो कि आपको और डेवलप करता है और आपको आगे ले जाता है। सो आई गॉट दैट पर्सन इन रक्षिता। सो आई थिंक दैट इज द बेस्ट क्वालिटी दैट आई लव अबाउट हर। और थोड़ा नेगेटिव साइड में मे बी लाइफस्टाइल का डिफरेंस है। मैं काफी लेट नाइट पर्सन हूँ, मैं काफी लेट सोता हूँ, मे बी 2 AM से पहले सोना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो ऑब्वियसली लेट उठता भी हूँ। बट रक्षिता बहुत ज्यादा पंक्चुअल और जो प्रॉपर टाइम, जो अच्छा वाला टाइम होता है सोने और जगने का, वो फॉलो करती है। तो वहां पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि यार इतना जल्दी उठ गए यार, अभी तो और थोड़ा और 2-3 और सो सकते थे, वो थोड़ा सा है। बट हाँ, वही मुझे एक लगता है। बट उसमें भी मैं लर्न कर रहा हूँ। आई थिंक मेरी हैबिट्स उतनी अच्छी नहीं थी या उतनी हेल्दी नहीं थी, बट रक्षिता की बहुत हेल्दी है, तो उससे मैं और काइंड ऑफ लर्न कर रहा हूँ, लेवरेज कर रहा हूँ। Nice. So Rakshita की emotional maturity, but at the same time Rakshita का early morning routine. Yeah. Nice. Rakshita, what about you? What do you have to tell about Ajay? उनकी कुछ अच्छी चीज जो आपको पसंद है और जो आपको नहीं पसंद? So, Isha, he's very calm, he's very soft and polite, and he's a very good listener, I must say. Matlab, very, very good listener, because I'm very talkative. When I start talking, I cannot stop. I don't know. It's a habit. And he's a very calm listener. सुनते रहते हैं, बस हाँ हंसते रहेंगे, सुनते रहेंगे, हाँ जी सुनते रहेंगे। मुझे लगता है ये सारे लड़कों में होनी चाहिए, बहुत बेस्ट चीज होती है। सब खुश रहेंगे, टॉकेटिव लड़कियां तो सब खुश रहेंगी अगर ये हैबिट है तो। I agree, totally agree. Yes. And I think ये एक आर्ट है, क्योंकि ये मुझ में नहीं है। मैं 15 मिनट से ज्यादा चुप नहीं रह सकती, और कोई 1 घंटा चुप रह सकता है। तो आई थिंक यही एक बेस्ट क्वालिटी है जो डे 1 पे ही क्लिक कर गई थी। आई वॉज नॉट इवन अ मूड टू टॉक फॉर मोर देन 10 मिनट्स। जब फर्स्ट टाइम कॉल आया, आई थॉट कि ठीक है 10 मिनट्स बात करेंगे और बोल देंगे कि अभी टाइम नहीं है, काम है, बाद में बात करेंगे। बट 15 मिनट जब मैंने बात करी, तब मुझे पता ही नहीं वो 1 घंटा 15 मिनट कैसे निकल गया, क्योंकि सिर्फ मैं ही बात कर रही थी। मैं 1 घंटे 15 मिनट में सब कुछ बता दिया था, बचपन से लेकर अभी तक हम क्या क्या करते हैं। तो इसमें भी मैं ये ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पर हम आगे एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मैं हल्क स्लाइटली इंट्रोवर्ट साइड हूँ। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की लाइन में सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट, और रक्षिता काफी ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है।
तो वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है और हमेशा एंटरटेनिंग सा बना रहता है. फॉर मी लाइक शी इज ऑलवेज डूइंग समथिंग एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग अराउंड मी. इनफैक्ट हम अराउंड 1 साल से एक दूसरे को जानते हैं एंड यू विल बी सरप्राइज, हमने आज तक एक भी सीरियल, एक भी मूवी घर पर एक साथ नहीं देखी है, बिकॉज वी डोंट गेट What are टाइम you टू दैट. saying? यस, नॉट इवन अ सिंगल एपिसोड आज तक नहीं देखा हमने, बिकॉज हमें टाइम ही नहीं मिलता है. हम आपस में इतनी बातें करते रहते हैं कि आज तक टाइम ही नहीं मिल पाया. एक मूवी हमने स्टार्ट किया था बट वो कंप्लीट नहीं हो पाई, मतलब वो भी क्योंकि हम पॉज करके बातें करने लगे बीच में. हाँ, वो बहुत अच्छा. तो रक्षिता की बातें ही मूवीज को रिप्लेस कर रही हैं अभी तक. या टोटली. That's nice. Yeah. और Go on, one- Rakshita. Yes, one thing I don't like about him, like there are multiple things, but I can only highlight one thing here. But still, you know, he's a very good learner. As he mentioned, कि इनको मॉर्निंग में लेट उठने की प्रॉब्लम है या फिर वो लाइफस्टाइल ही ऐसा रहा है, वर्क प्रोफाइल भी कुछ ऐसा ही है कि लेट ही उठना करके. बट आई मस्ट से ही इज इम्प्रूविंग अ लॉट. आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि जब वो डे 1 पे भी कॉल हुआ था तो आई टोल्ड हिम कैटेगरली कि आई एम अ टी टॉटलर और मुझे बेड टी चाहिए ही चाहिए एट एनी कॉस्ट. मैं बिना टी के नहीं उठ सकती. स्टाइल मारने के लिए बोल दिया, मिल जाएगी. अब बनानी पड़ रही के लिए सुबह उठ के 8 बजे. तो But क्या बन रही है हर रोज? बिल्कुल बन रही है विदाउट फेल. Wow. That we have to give to Ajay then. एग्जैक्टली 2 बजे उठने वाले इंसान 8 बजे अलार्म लगा के उठ रहे हैं, चाय बना रहे हैं, मुझे प्यार से मेरी कुकीज और टी सर्व कर रहे हैं बेड पे, एंड देन ही इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल मॉर्निंग स्टफ. सो आई एम अ वेरी लकी पर्सन टू हैव हिम. अजय प्रॉमिस किया है तो प्रॉमिस तो पूरा करना ही है. प्रॉमिस कर दिया था, तब लगा कि यार प्रॉमिस कर देते हैं, बात का बाद में देखें. बट आई थिंक अब उसको निभाना भी पड़ रहा है और अच्छी बात है. बहुत कुछ ये काइंड ऑफ एक पॉजिटिव चेंज है अगेन. जैसे कि मैंने बताया रक्षिता मुझे कंप्लीट करती है, तो मे बी जो मेरे उतने नॉट सो पॉजिटिव साइड्स थे वहां पर वो आके फिट बैठती है और उनको कंप्लीट करती है. Okay, so we'll quickly want to hear आप लोगों से कि जब आपने अपनी मैरिज करी है लॉकडाउन पीरियड में, उसके बारे में अगर आपको एक लाइन बोलनी हो, एक लाइन में समराइज करनी हो अपनी लॉकडाउन वाली मैरिज, वो क्या रहेगा? Simple and fun. Simple and fun. Nice. Okay. What about you, Ajay and Rakshita? Yeah, so I would say अच्छे काम में देरी कैसी? Brilliant. Some of the photos that we saw in the beginning of the webinar, वो काफी interesting थी. आप दोनों ने मास्क पहने हुए थे और आप दोनों में एक कुक की तरफ इशारा कर रहा था. तो कौन कुक है यहाँ पर आप दोनों में? अभी फिलहाल तो आई थिंक मैं ही, ये स्किल है जो थोड़ा डेवलप करने का ट्राई कर रहा हूँ. मैं ही कह सकता हूँ कि मैं ही हूँ. मैंने सोचा था कुछ और, बट आई थिंक मुझे ज्यादा चांसेस मिलते हैं और इन्होंने मुझे वो कुक देना चाहा, मैंने लिया नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया. मैंने एक्सेप्ट नहीं किया. Brilliant. And anyway, Betty तो आ ही रही है. बिल्कुल with cookies. So that service continues. Exactly. What about you, Sonali and Mudit? When the lockdown marriage happened, You know what, Isha, if you're talking about the lockdown marriage that had happened, if I would summarize in a single line, I would say, first thing ki, I don't believe in like photos khichna. Matlab, I don't truly believe, though I love photography, but I don't believe in ki meri photos khiche. I don't like from the very first, and he knows that. So I'm the person who would love keeping memories. So this is the best memory for my life, you know, that I can cherish for all time. So this was the best. Nice. Yeah, this will always be the best memory that I can cherish. और रही बात कुक की, तो अभी तो सच में कुछ ऐसा डिसाइड नहीं हुआ है. He loves making coffee and I love having coffee. So in terms of cooking coffee is always doing that. बाकी खाने वाने तो हम दोनों ही सब बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं दोनों ही. that's nice. That's nice. Cool.
तो अब हम थोड़ा आपकी जर्नी जहाँ शुरुआत हुई थी उसके बारे में जानना चाहते हैं। कब ये प्रोसेस शुरू हुआ, कि अच्छा कुछ जो कहते हैं ना कि मैरिज करना है, उसका थॉट आना और उसके बाद अकाउंट बनाना साइट पे। व्हेन डिड ऑल दिस स्टार्ट? मेरा जब शुरू हुआ था तो लाइक बात तो जैसे चल रही होती है घर पे, तो अब कहीं से आते हैं हमारे कम्युनिटी में कि यहाँ से आते हैं वो सब, तो मेरा एक सेट क्राइटेरिया रहा है कि मुझे एक इंडिपेंडेंट थॉट वाली लड़की चाहिए जो मतलब अपने व्यूज को रख सके, ठीक है। सो आई डोंट, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था कि कोई आए और जी हाँ चलता रहे, सो वो मुझे नहीं चाहिए। So I always wanted debate kind of a thing, कि बातचीत हो, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू हो, मुझे भी कोई बताए कि ये सही है गलत है। तो एक सेट क्राइटेरिया था। तो जब मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी कहती कि मुझसे तो नहीं होगा, तो खुद ही देख लो। कुछ भी होता था तो नहीं पहले ये क्राइटेरिया हो जाए। तो फिर बात करके समझ में आता है। तो मम्मी ने बोला ये ऐसे साइड वाइड्स पे डालो, तो मैंने किस पे डाले, तो मम्मी ने उस टाइम वही, उनको एड बहुत पसंद है जीवन साथी वाला, जो लड़का एक मैरिज में जा रहा होता है तैयार होकर के, है ना। तो मम्मी ने बोला इस पे बना लो, इस पे देखो क्या होता है। तो मैंने कहा ठीक है बना लेता। 3 हफ्ते तक मम्मी रोज फोन पे बनाया। मैं मम्मी को बना रहा था, मम्मी और उस समय आप ओमान में थे? हाँ। और मम्मी अकाउंट बनाने को बोलती थी, मैं मम्मी को बना रहा था कि हाँ बना लिया, नहीं बना। फिर एक दिन बहुत मम्मी गुस्सा हुई, तो उसके बाद जाकर के अकाउंट बनाया। फिर वो आपका प्रोफाइल का है एक सेट यूजर इंटरफेस, उस पे मैं प्रोफाइल देखता रहा। तो एक सेट क्राइटेरिया ये भी था कि फोटो से तो समझ में नहीं आता ना कोई क्या है, मतलब कोई भी फोटो लगा दे क्या पता चले। बट एक सेट क्राइटेरिया था कि स्माइल और आईज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि देखना है भाई इंसान को, स्माइल और आईज अच्छी होनी चाहिए। तो इनकी स्माइल समझ में आई तो शो इंटरेस्ट कर दिया। अब शो इंटरेस्ट कर दिया तो सामने से भी जवाब आ गया। अब सामने से जवाब आया तो वो जब तक आप एक लेवल का मेंबरशिप नहीं लेते तो मैसेज नहीं भेजा जा सकता। अब मेरी वहाँ सुबह होती थी 5 बजे, मतलब मुझे 5 बजे उठ के जाना होगा, 6 बजे से ऑफिस शुरू हो जाता है। वहाँ काफी गर्म रहता है तो वहाँ पे जल्दी सुबह काम शुरू करते ताकि दोपहर तक काम खत्म हो जाए। तो एकदम मैंने रात को 11 बजे ही मेंबरशिप ली। मैं कहा भैया मैसेज भेज देते हैं। उसके बाद इनका सुबह रिप्लाई आ गया। फिर वहां से बातचीत शुरू हुई। 31 अगस्त से हमारी बात शुरू हुई थी, जो अभी हमारा लगता है साल हो जाएगा उस बात को। और फिर हमारी धीरे धीरे बात हुई तो हम इस मुकाम तक आ गए कि आज हम इनके साथ में बैठे। That's lovely, that's lovely. What about you, सोनाली? आपका भी अकाउंट क्या उसी पीरियड के अराउंड बना था? बिल्कुल, एज पहले भी बात बोली है शायद ये बात मुदित ने, कि हम दोनों की साइड से हम दोनों एक दूसरे को, हम लोगों का फर्स्ट इंटरेस्ट था। टू बी ऑनेस्ट ईशा, वेरी ऑनेस्ट, हम दोनों ही जीवन साथी या फिर कोई मैट्रिमोनियल साइट पे बिलीव नहीं करते, बट हमारा रिश्ता वहीं से हुआ। Like it is a thing to all the viewers कि जिनकी शादी नहीं हुई है, तो there is a chance guys, तुम लोग ट्रस्ट करो मैट्रिमोनियल साइट पे या नहीं, it can happen. Anything can happen. So love can happen anywhere, right? You can find love through any place. Definitely, yeah, this is true, Isha. तो मेरा अकाउंट मेरी ट्विन सिस्टर और मेरी माँ हैंडल कर रहे थे। तो आई वाज लाइक कोई देख लो, मैं आई वाज नेवर इंटरेस्टेड ऑनेस्टली ईशा, बट द डे शी टॉक टू हर, मे बी 5 मिनट्स के लिए इसकी चैट हुई होगी, शी वाज लाइक एक्सप्लेनिंग कि मैं अपनी सिस्टर के लिए लाइक बात कर रही हूँ, वो मेरी ट्विन सिस्टर है, तो ही मस्ट हैव टोल्ड कि मेरा भी एक ट्विन ब्रदर है। So that time when I was doing something, I still remember that evening. She told me, you know what? This guy also has a twin brother, and I was like, okay, let me just talk to him then. Otherwise, I was never interested in talking to anyone. So this way, हमारी बात start हुई, and as we told, 31st August day. But it was a very arranged kind of criteria, Isha, क्योंकि
हमने शायद अक्टूबर के एंड तक व्हाट्सएप पर ही बात की है या फिर जीवन साथी के मैसेजेस पे. We had never listened to each other. It was very funny. तो अक्टूबर के एंड तक हम लोग चैट्स पे थे. तो अक्टूबर के बाद हमारी स्टार्ट में जब हमारी कुंडलियां मैच हो गई थी, एवरीथिंग वाज डन. तब हम हमारी फैमिली मिली, तब हमारी बात होना स्टार्ट हुई. This was the thing that happened. This is the criteria for us. Right. So we'll come to some of those conversations जो कि पहले कुछ मीटिंग्स में हुई, किस तरीके से बात आगे बढ़ी. बट पहले मैं एक बार अजय और रक्षिता के पास वापस से पूछना चाहती हूँ, उनका प्रोसेस ये सब कब शुरू हुआ था? तो मेरी तरफ से प्रोसेस ये लास्ट ईयर जून के अराउंड शुरू हुआ था. सो एक्चुअली बिफोर गोइंग ऑनलाइन रेगुलर प्रोसेस भी चल रहा था, बट उसमें ना काफी सारे कंस्ट्रेंट्स थे. मेन कंस्ट्रेंट वाज कि मैं काफी ट्रैवल करता हूँ, तो दिल्ली में मैं बहुत कम रहता था जहाँ पर मेरा घर है. तो लोगों से कनेक्ट कर पाना बहुत डिफिकल्ट था. फिर उसके बाद मैंने ये वाला रूट ट्राई किया. तो इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपके पास कि आप किसी भी टाइम पर देख सकते हो प्रोफाइल, किसी से कनेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो व्हेनेवर यू आर फ्री, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर फ्री हो वर्क से. तो फिर ये हमने जून और जुलाई के स्टार्टिंग में ये मेरे प्रोसेस स्टार्ट किया. और फिर जुलाई के आई थिंक मिड में हमने एक दूसरे से कनेक्ट किया जेएस के थ्रू. तो वहां पे हमने सबसे पहले ऑब्वियसली आई थिंक वो इसका यूआई भी मुझे काफी यूजर फ्रेंडली लगा, क्योंकि इसमें काफी अच्छी इंफॉर्मेशन होती है, फोटो होती है और उसके नीचे जो आपकी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जो आपको देखनी है, वो बिल्कुल लाइक फर्स्ट साइट में अवेलेबल होती है. तो उसकी वजह से काफी इजी होता है लोगों को वहां पर स्क्रीन करना और लोगों से कनेक्ट करना. तो फिर उसके थ्रू फिर हमने कनेक्ट किया पहले जेएस के थ्रू. उसके बाद फिर हमें लगा कि यस एवरीथिंग इज गुड. उसके बाद वी मूव टू व्हाट्सएप एंड देन वी टॉक ओवर फोन एंड all that thing happened when while I was not in Delhi. So because of this online thing, it was very useful for me to connect to her through this platform. Thanks. Rakshita, what has your experience been? आपका सर्च ये कब से किस तरीके से शुरू हुआ? This marriage search. So my statement is exactly the same as Mudit and Sonali, that I have a less belief system in online portals and going, when it comes to choosing a partner in crime, not a husband. So मुझे ये thought था कि शायद online तो कुछ ऐसा मिल ही नहीं सकता, because I'm very crazy. So इस तरीके का एक मैच ढूंढना जो आपको complete करता है, आपकी craziness को complete करता है. तो for me it was a very big no for this platform. But yes, luckily, one night the same has happened with Sonali and Mudit. We just, selected each other profile, और फिर हमें, but मैसेज से व्हाट्सएप में आने में बहुत टाइम लगा, बिकॉज इनका ट्रैवल बहुत ज्यादा होता है, मेरा लेट नाइट जॉब था. हाय से आगे बात बढ़ी नहीं पा रही थी. 20 दिन हो गए थे, हाय 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 यही चल रहा था. और मैं थोड़ा सा जस्ट बिकॉज बिलीफ सिस्टम कम था, तो मैं इंटरेस्टेड भी ज्यादा नहीं थी बात करने के लिए, कि नहीं मैं बात नहीं करूंगी, ऐसे करके नहीं मैं बात नहीं करूंगी, मन मना कर दूंगी कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं करूंगी. बट सेम डे आई टोल्ड यू कि एक बार बात हुई, तो आई थिंक उस दिन के बाद ये टॉक वाला कभी बंद ही नहीं हुआ बिल्कुल भी. एंड एवरी अ पर्सन रिलेशनशिप में एक पर्सन होता है जो हमेशा ड्राइव करता है चीजों को. सो आई वुड लाइक टू गिव द क्रेडिट टू अजय फॉर बीइंग सो पेशेंस. 20 दिन तक मुझे रेगुलरली मैसेज करना, हाय, और मेरा जवाब ना आना. ए बी ही यूज्ड टू वर्क दोस डेज इन चेन्नई. तो फ्राइडे मॉर्निंग फ्लाइट लेकर दिल्ली आना, दिल्ली के बाद सीधा मेरे ऑफिस नोएडा आना, मुझे पिक करना जस्ट थोड़ी सी घंटे के लिए मिलने के लिए, फिर वापस सैटरडे संडे मुझसे मिलना, और संडे की फ्लाइट ना लेके मंडे मॉर्निंग की अर्ली फ्लाइट लेना, जबकि ही इज नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, और वापस चेन्नई फिर चले जाना. दैट मीन्स वो पूरा 6-7 महीने जो एफर्ट किया है, वो दैट इज रियली इम्प्रेसिव. So that's beautiful, Ajay. Yes, he's very good in this, I must say. He's very good in giving surprises, pampering and everything. So after that we have realized, after dating a few months, कि let's disclose this in our family, because मेरी family, इनकी family दोनों ही बहुत ज़्यादा happening है.
जैसे ही वो दो फैमिलीज मिले ऐसा लग रहा था कोई बहुत पुराने फैमिलीज या रिलेटिव्स बन गए हैं। मेरी मॉम इनकी मॉम अब बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बहुत ज्यादा बेस्ट फ्रेंड्स हैं That's वो। very nice. यस और मतलब इट्स नॉट वी मेट, इट्स लाइक दो पुरानी फैमिलीज आपस में मिल गई हैं, ऐसा कुछ हुआ बस। Nice. So a quick question, because we're talking about families. जब criteria आता है partner search में, there might be some criteria जो आपका अपना हो, you know, that you want to look for in a partner, but आपके family का भी कुछ criteria हो सकता है। उसमें क्या कुछ gap था या वो similar थे? मेरा फैमिली का तो ये था कि जो तुम्हें पसंद आएगा उससे तुम मतलब हमें पसंद आएगा, मतलब बहुत लिबरल लाइक थिंकिंग है हमारी फैमिली की दोनों की। सो एंड यूजुअली बचपन से यही मतलब मैं सुनता हुआ आया हूँ, मेरी लाइक बड़े बुजुर्ग भी यही कहते थे, इवन माय नानी आल्सो लाइक टू से दिस, कि जिस मर्जी से करो बस तुम खुश रहो। और घर को मतलब लाइक एक जो होता है ना कि मतलब फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होना चाहिए, तो वो हर मेरे ख्याल हर पेरेंट्स और हर फैमिली का यही एक थॉट प्रोसेस होता है एट द एंड ऑफ द डे। अब वो किसी भी तरीके से उनका चलता है, कोई न्यूक्लियर फैमिली के हिसाब से चलता है, कोई जॉइंट फैमिली के हिसाब से चलता है, कोई मिक्सचर के हिसाब से चलता है। तो फैमिली क्राइटेरिया हमारा इतना ज्यादा मतलब इसमें रोल प्ले नहीं किया था, बट हम दोनों का खुद का जो क्राइटेरिया था वो जो भी था वो हम दोनों का था। We were all We were dependent. stuck to our this thing कि मतलब हम लोग, और बेसिकली टू बी वेरी ऑनेस्ट ईशा, हम लोगों की फैमिलीज और हम लोगों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है थिंकिंग क्राइटेरिया। Okay. It's That's like good, yeah. it is quite, it balances everything. Similar है। Similar है हम So लोग। जब families मिली, it was all smooth between the two families? Yeah, from the time they met, the struggle we faced was before the families met. That is the time when हमारी कुंडलीज मैच हो रही थी and we were like कैसे मिलवाना है, because everything in a way it started from our families, but एक्चुअल में हम ही लोगों से स्टार्ट हुआ हमारा। जब मैसेज से बात करना, then it was like कि चलो माँ पापा को बोलना कि अब आप लोग कुंडली मैच करवा दो। So everything was dependent on that match of kundli. Once it was done, then it was quite an easy thing. Then it became easy. Lovely. Cool. So अब थोड़ा सा बात करते हैं जो आपकी इनिशियल कॉन्वर्सेशंस चल रही थी कोर्टशिप पीरियड में। कितना लंबा रहा कोर्टशिप पीरियड? उसमें क्या कॉन्वर्सेशंस सबसे इंटरेस्टिंग लगती थी आपको? किस तरीके से मैनेज करते थे? जैसे कुछ आपने हिंट दिए अभी। और उसमें ऐसी कौन सी क्वालिटी आपको एक दूसरे में दिखी जिससे आपको लगा पक्का से यही एक इंसान है जो मेरा लाइफ पार्टनर बनने के लिए यू नो मेरे दिमाग में एकदम परफेक्ट है? क्या? तो मैं ये कहूंगा कि जब आप बात करना किसी से भी स्टार्ट करते हो ना, सो जस्ट बी ऑनेस्ट। मतलब अगर आप मतलब आप एक इंसान को चुन रहे हो या देख रहे हो जिसके साथ आपको शायद मतलब पूरी जिंदगी बितानी है, मतलब आप जब तक जिंदा हो तब तक आप उसके साथ हो, तो अगर आप आज कुछ ऐसा फ्लैशी सा या उसके हिसाब से सामने वाले के हिसाब से कुछ ऐसा दिखाओगे, मतलब कब तक दिखा लोगे वैसा? मतलब यू कांट फेक, यू जस्ट हैव टू बी ऑनेस्ट। मतलब जैसे बोल दिया मेरा जो भी वो नेचर है, बट मैं यही मानता हूँ कि शुरू से ही ऑनेस्ट रहो। और फर्स्ट टाइम जब आप बात करो, चाहे वो कितनी भी कैसी भी हो, बट सच्ची बात करो कि मुझे जिंदगी से ये चाहिए या मेरा ये सोच है, और आपकी अगर ये सोच मैच करती है तो लेट्स गो एंड देन टेक इट फॉरवर्ड। नहीं मैच करती तो ठीक है, मतलब हर फल एक जैसा नहीं होता, लेकिन हर एक फल अपने आप में एक क्वालिटी लेकर के आता है। तो वैसे ही हर इंसान एक जैसा नहीं होता, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है। So just like that, आप जरूरी नहीं है कि कोई सुंदर है तो वो उससे आपका ट्यूनिंग मैच हो, कोई सुंदर कम है तो उससे ट्यूनिंग मैच हो रही है, तो लेकिन मतलब आपको अपना क्राइटेरिया पहले से डिसाइड करके रखना है। जस्ट हैव टू फोकस ऑन कि आप लाइफ लॉन्ग अपनी माइंड की थिंकिंग और अपने दिल से उसके साथ मैच कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। वही एक चीज हमने शुरू से रखी। To be short and crisp, sorry, you were saying something, Isha? No, I was just saying that's a beautiful tip for all our users. जब आप ये कोर्टशिप पीरियड में एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, जान रहे हैं, चैट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, be honest about yourself. If you're seriously coming on this platform, then you must I think you must have a prescribed set of principles. It should not be fun. It honestly should not be like, you should not come for a fun thing here. It
should not be casual. It should not be too. You should be serious. कि intention है, serious है, और उसमें honesty के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं. वैसे तो इसके बारे में if you talk about him with his family members or his friends, he's been a cool dude, but I would say that he's a very principle based person, just like, you know, a father type of a person. So this is the reason, you know, when a girl would talk to such a guy, definitely she'll be serious enough. मतलब मैं तो बहुत Right. prank करती थी ईशा, मैं honestly बताऊं, तो starting में when we were talking on phone, then I was like, चलो prank खेलूं मैं, I was like, मैं तो हकलाती हूँ. मैं तो हकलाती हूँ, I was so serious. मैं सीरियसली बोलती थी, मैं हकलाती हूँ, मतलब मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मेरी आवाज बहुत लाइक पिची सी है, मैं It's सब very बेकार की sharp. बात है. But it's like, okay, it's fine, we'll see. What was happening was that our compatibility, our mindsets, you know, our thoughts, our way of thinking was matching at various levels. So this is That's most important. Yeah. Yeah, lovely. Cool, brilliant. Let's also hear from Ajay and Rakshita. Ajay, Rakshita, आपकी conversations में आपको कब लगा कि ये एक perfect बंदा है जिससे कि मैं, you know, अपनी पूरी life इनके साथ बिताना चाहूंगी? मेरे एंड पे तो आई थिंक ऐसा कुछ शार्प इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं था, काफी स्मूथ ट्रांजिशन था. तो धीरे धीरे ही हमारे को बात करते करते ऐसा लगने लगा, शायद एटलीस्ट मुझे ऐसा लगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था कि हमारी ट्यूनिंग बात करने के टाइम पे बहुत अच्छी है. बात करते हुए टाइम का पता नहीं चलता, और दूसरा हमारा थॉट प्रोसेस और जो लाइफ के मेजर गोल्स हैं काफी ज्यादा अलाइंड थे. तो आई थिंक वो स्मूथली बिल्कुल नेचुरल फ्लो में ऐसा हुआ ट्रांजिशन धीरे धीरे, और फिर बस लगा कि हाँ अब बस डन है डील, ऐसा लगने लगा. Oh, that's nice. Lovely. So, we'll move to आपकी wedding, marriage preparations, उस बारे में थोड़ा सा बात करेंगे. What I would want you guys to tell us is आपकी originally planned wedding date क्या थी? Did you stick to the same date? Did you change the date slightly? और जब ये सब लॉकडाउन सेटिंग्स में शादी करने का पूरा प्रोसेस चल रहा था, तैयारियां चल रही थी, आई एम श्योर सम प्रिपरेशंस वेंट थ्रू सम अमाउंट ऑफ चेंज. क्या चीजें थी जो आपको स्ट्रेस दे रही थी, और ऐसी क्या चीजें थी जो आपको फिर भी उस समय पे भी कंफर्ट कर रही थी और आपको एक भरोसा दिला रही थी कि सिचुएशन जैसी भी हो, लॉकडाउन जैसा भी हो, ये मैरिज सक्सेसफुली रहेगी, including the wedding function and the marriage ahead, the journey of marriage ahead. Rakshita and Ajay, why don't you begin on this one first? Yes. So Isha, initially हमारी dates actually बहुत सारी ही थी starting से ही, और हमारी dates बहुत सारी change हुई हैं. So almost 7 dates हमारी change हुई हैं. So जो हमारी 6th date थी और जो हमारी final date थी वो हमारी 15th of April थी, जिसके as per plan सब कुछ बहुत fixed था. It was like मैंने और अजय ने खुद जाके venue decide किया. हम सब कुछ बहुत decide करते थे कि सेम वेडिंग डे वाले दिन क्या होगा, वेडिंग से पहले कितने प्री वेडिंग फंक्शंस होंगे, प्री वेडिंग फंक्शंस में क्या एंटरटेनमेंट सोर्स रहेगा, कब हमें क्या करना है, कब हमें सिंगिंग वाला करना है, कब हमें डांसिंग वाला करना है. बहुत कुछ चल रहा था. 5 डेज के प्रॉपर रॉकिंग फंक्शंस होने वाले थे. 500 लोगों की गैदरिंग थी 15th of April को, और हमने सब कुछ डिसाइड कर रखा था. लाइक अजय डांस नहीं करते हैं बिल्कुल भी, तो ये भी अजय के लिए एक टास्क था कि अजय को डांस भी सिखाना है, कोरियोग्राफर भी बुलाना है, सब कुछ ये सारे मूव्स भी करने हैं. तो एक ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग था. और उससे भी बड़ा पता है क्या होता है कि कन्विंस करना किसी नॉन डांसर को कि आपने डांस करना है अपनी शादी में. तो ये एक बहुत ज्यादा ही चैलेंजिंग चीज था. बट 15th of April वाले डेट के हिसाब से सब कुछ बहुत ही स्मूथ सब कुछ था. देन वी ऑल नो व्हाट ऑल हैपेंड, राइट? सो 15th of April को भी
बट एज आई टोल्ड यू दैट वी ऑल आर क्रेजी, तो हमने वो 15th अप्रैल मिस नहीं करा. 15th of April को भी हमने वर्चुअल पार्टी करी और वी हैव सेलिब्रेटेड एंड चेरिश्ड दैट डे. यस, माय कजन्स कॉल्ड मी एंड वी ऑल डिड अ वर्चुअल पार्टी सो दैट वी शुड नॉट फॉरगेट दिस डे कि कुछ तो था, कुछ तो डेट था ये हमारा इम्पोर्टेंट. And when it's come to deciding this that we have to get married in COVID-19 only lockdown, I think मैं इतना ज़्यादा mentally prepared नहीं थी, but I categorically remember that day when on a Mother's Day when I called his mom wishing a happy Mother's Day, and very politely, very softly she counseled me एंड मुझे पूरा अच्छे से समझाया कि ये तो चलने ही वाला है, ये खत्म नहीं होगा, जस्ट गिव अ थॉट इफ वी कैन डू दिस थिंग. एंड शी इज वेरी lively lady, I must say, very good and lively lady. So she counseled me a lot and I got convinced that day कि ठीक है करते हैं. अब करना कैसे है, अब ये डिसाइडिंग फैक्टर होने लगे कि करना कैसे है, कितनी सेफ्टी रखनी है, बिकॉज वी एक्चुअली आर रिस्पॉन्सिबल. द पीपल हु आर कमिंग, our parents are coming on our wedding day, it's all total our responsibility. And keeping each and everything keeping in mind, food, water, lighting, every person, guest, everything, it was our responsibility. So it was फिर हमने अप्रैल से पोस्टपोन किया उसको. उस टाइम पर कुछ डिसाइडेड नहीं थी अप्रैल के बाद क्या होगी, जस्ट बिकॉज वी वर असेसिंग द सिचुएशन. और फिर हमने डिसाइड किया अराउंड मे एंड में हमने डिसाइड किया कि हमें इसको जून में ही हमें वेडिंग को रखना है, जस्ट लुकिंग एट द कंडीशंस और जस्ट देखते हुए कि क्या होने वाला है फ्यूचर में. थोड़ा टाइम लगेगा ऐसा लग रहा था, तो इसलिए हमने जून में फिर इसको प्लान कर दिया. नाइस. तो वेडिंग में आपके लिए अगर आपको एक स्ट्रेस बताना हो जो कि आपको परेशान किया, जिस बात ने, वो क्या था, और ऐसी कौन सा कंफर्टिंग चीज लगी उस समय जिसने कि उस स्ट्रेस को स्मूदन आउट कर दिया? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इंडियन वेडिंग में होती है वो है फोटोग्राफ. सबको आना है और फोटो भी खिंचवाना है, हमें भी क्लिक करवाना है, फोटो सबको करवाना है. अब मास्क की वजह से वो हो जाता है काफी कंस्ट्रेंट. तो आई थिंक चैलेंज भी था और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था इसको मैनेज करना. बट ये यूनिक ही तरह की वेडिंग्स रही हैं, राइट? वेडिंग्स विद मास्क, विद वेरी लिमिटेड पीपल, बट जो लोग आपकी इमीडिएट फैमिली हैं, पीपल हु मैटर, अगर वो आपके साथ रहे हैं और उनके साथ आपकी वेडिंग सक्सेसफुल रही है, देन देयर इज एब्सोल्युटली देयर ऑल ब्यूटीफुल मेमोरीज दैट यू क्रिएटेड. ये एक्चुअली ये हमारा एक काइंड ऑफ इनर्शिया होता है कि फोटोज क्लिक करवानी है विदाउट मास्क के, वो तो मतलब नॉर्मल है ये. बट इसमें भी लोगों ने कई पॉजिटिव चीजें निकाली कंडीशंस के हिसाब से. फॉर एग्जांपल काफी डिजाइनर मास्क लोगों ने अपने बनवाए, कलरफुल ड्रेसिंग से मैच करते हुए, तो उससे सेफ्टी का भी ध्यान रहा और उनको फोटो में भी थोड़ा सा एक डिफरेंट फ्लेवर और डिफरेंट मेमोरी क्रिएट हुई. बिकॉज 20 years from now, 10 years from now, when you will see your photos और उसमें मास्क आपने पहना है, तो यदि आपके किड्स, आपके रिलेटिव पूछेंगे ये कौन सी वेडिंग थी यार, ये कौन सा जमाना था उस टाइम पे. तो आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी नाइस स्टोरी टू टेल लोगों को कि हाँ वो अच्छा उस टाइम पे ये हुआ करता था, ये हुआ था, तो वो काफी अच्छा एक नेगेटिव मतलब काफी कंस्ट्रेंट को भी लोगों ने पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर दिया उसको. I totally agree, and I think for all four of you, जब हम इस तरह की सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं अपने पार्टनर के साथ और उससे सॉल्यूशंस इकट्ठे निकाल पाते हैं, I think that's also a very important test in any relationship. The fact कि आप उन इश्यूज को अच्छे से डिस्कस करके उनकी सॉल्यूशंस अपनी फैमिलीज के हिसाब से एंड अपने हिसाब से एक एमिकेबल सॉल्यूशन पे आप अराइव कर पाते हैं. So beautiful thoughts there. Mudit and Sonali, how about your experiences? आपकी जब लॉकडाउन में मैरिज हुई है, what were the highlights? सबसे बड़ा चैलेंज तो ईशा था हम दोनों का डिफरेंट सिटीज में होना, डिफरेंट स्टेट्स बेसिकली. I was in UP and you're in Delhi. So this was the biggest challenge, one thing. And another thing, as they told, हम लोगों को भी डेट का कोई अंदाजा नहीं था. हमारी एक्चुअल डेट was 5th April जब हमारी शादी हुई
थी and everything was decided. Obviously it was not easy as well to पहले से prepare करना, and actually the thing is that my parents have two daughters. तो मेरी एक younger like twin sister है जो छोटी है मुझसे, तो definitely मेरी शादी पहले थी, तो everything was new for everyone at my place. तो उसके बाद 5th अप्रैल के लिए सारी preparations करना, everything was finally done. It was done कि ठीक है, दो हम दोनों नहीं चाहते थे ऐसे, हम दोनों की शुरू से ऐसी थॉट थी the thing should be very simple, but at the end of the day when your parents are involved in this thing completely, तो फिर सबकी मर्जी से चलता है. तो it was fine, Absolutely. चलो ठीक है, वैसे शादी हो रही है, तो with a great pomp and show सब कुछ होने वाला था 5th अप्रैल को. But then because of this lockdown, which you can say Yeah, 5th April was just about 10 days away from the lockdown. I think 23rd or 25th March के around is when, you know, the complete lockdown was announced. तो ये बेस्ट Yeah. पार्ट कि मतलब 10 डेज का डिफरेंस, तो हमें पता था कि हमें आगे शिफ्ट ही करनी पड़ेगी. मतलब ये नहीं था एकदम. कि अगर अप्रैल के एंड में अगर हमारी डेट होती तो हो सकता है तब तक लॉकडाउन ठीक हो जाए, तो हो सकता है हमारी शादी हो. तो वी वर लाइक वी हैड एन अवेयरनेस कि हम अभी अप्रैल में तो नहीं कर सकते, आगे शिफ्ट एकदम. करने हो. बट देन हम डिफरेंट सिटीज में थे, सारी प्रेपरेशन करना, और फिर कब शादी होगी, इट वाज अ बिग ट्रॉमा थिंग फॉर अस. इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल, नो डाउट इन दिस. बट then finally हम लोगों we came down because Mudit was like he had written to the CM. We were doing a level best talking. I had a talk with the DM of our city. मतलब हम यही Wow. कर रहे. We did a lot, no doubt in this. But then final preparation जब हमारी final date fix हो गई, जब मुदित ने कह दिया अब तो कुछ नहीं पता, बहुत strongly he says that he's like अब तो हो गया, अब तो हम 4 आ रहे हैं. Means his twin brother his twin brother and his wife and my mother-in-law. So these 4 people were coming to Kanpur कि शादी करने आ गए. The entire preparations, I must say that there it was all dealt basically by my twin sister Monali, and then फिर ये लोग आ गए तो इन्होंने बहुत support किया. So ultimately it was a real tough thing क्योंकि सब घर पे होना था, so it was not simple. Obviously it's a marriage, ये शादी है, तो घर पे सारी preparation करना, सब कुछ करना, so it was all on my parents और Monali, मतलब मेरी sister, my twin sister, her name is Monali. So these guys, they did it. So finally, it was nice. It was beautiful. Yeah, it was beautiful, and it is beautiful because finally वैसे हुई जैसे हम दोनों चाहते थे. Simple and fun. Yeah. So लॉकडाउन के होने की वजह से काफी चैलेंजेस तो रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली हमें वही मिला जो हम दोनों करना चाहते थे, सिंपल तरीके से. और ठीक है, अब मतलब लाइफ में चैलेंजेस होंगे तभी लाइफ कहलाएगी, वरना तो होगी नहीं. बस फिर लाइक चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, बट द ओनली थिंग व्हिच कीप अस गोइंग वाज कि एक दूसरे का साथ जो भी हम हैं और हमारे फैमिली का सपोर्ट, चाहे वो इसके मम्मी पापा का हो, मोनाली का हो, या मेरे भाई का हो, या भाभी का हो, मतलब हम सबका जो मतलब एक साथ था, एंड वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड था कि इट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, इट्स नॉट जस्ट फॉर यू. कोई मतलब कई ऐसा सोसाइटी में होता है ना कि जस्ट नेगेटिविटी तुम्हारे ऊपर नजर है, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, तो नहीं आया कहीं से भी. सो फैमिली का जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहा कि कुछ नहीं होता, जैसे भी होगा हम करेंगे, हमें करनी तो है ही. तो वो सब चीजें बहुत होती है अरेंज मैरिज सेटअप में ना, these things hamper a lot. You know what, Isha? It was a new thing for the entire world to learn. In marriage setup also, there are few things जो हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत बड़ी होती है, जैसे एक मैरिज हो गई, अरेंज मैरिज सेटअप है. तो you get to know what exactly your family is and where a girl is going, what family that is. You know, the utter support I got from this family, the utter support means हमें कुछ नहीं करना पड़ा, like मतलब मेन फैमिलीज ने सब कुछ किया, चाहे उधर माँ पापा और मोनाली हो, चाहे यहाँ मम्मी और मोहित और भावना हो. So Mohit and Bhavna, they were taking care of all the photography, and you know,
it was like कोई enjoyment नहीं उनके लिए. They were all time busy with the cameras and everything कि सब shoot हो जाए. And हमारी शादी was like online. It came on Facebook and all the social media sites. So it was all the credit goes to them. There were several people who were watching it live on 13th of June. I still Oh. can get that date, 5th of April. So No, but that's beautiful. I mean, right from April, जब आप सबके लिए planning थी, to June when it actually happened, I'm sure the families went through a lot of conversations, a lot of convincing each other, and I think उसी understanding के साथ ये पूरी journey start करना, that is that I think is the biggest and the best kind of start that you can give to something like marriage, which is for a lifetime, right? तो along with ये जो लॉकडाउन ने वेडिंग प्रेपरेशंस पे इम्पैक्ट किया, आई एम श्योर लॉकडाउन इज ऑल्सो हैज अ रोल टू प्ले जब आपकी वेडिंग का, मैरिज का ये जर्नी का शुरुआत हुआ है, व्हेन यू आर स्पेंडिंग ऑल दिस टाइम विद ईच अदर. तो अभी इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स, मंथ, अभी इस लॉकडाउन का इम्पैक्ट जो आपकी मैरिज जर्नी पे अब हो रहा है, क्या उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? work from home. Yeah. मेरे दोस्तों का ना मैसेज आता है, सो माय फ्रेंड्स आस्क मी कैसा चल रहा है, तुम दोनों वक्त कैसे बिताते हो साथ में. तो मैं बोलता हूँ मैं एक जगह लैपटॉप लेके बैठा है, तो ये दूसरी जगह बैठी रहती है, हम दोनों साथ में वक्त बिताते हैं. So that's how we spend. But वो भी एक अपने आप में मतलब एक फन है और अपने आप में एक अच्छा लगता है, क्योंकि आसपास यू आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मतलब एक दूसरे के पास हो, एहसास हो. चाहे कि अलग अलग ऑफिस भी जाते हो, 9 to 12 वाला जो सीन होता है, मतलब 9 to 6 वाला, उसमें ना मतलब आप लूज तो करते ही हो, मतलब यू आर नॉट इन क्लोज कांटेक्ट, चाहे फोन पे रहो, मैसेज पे रहो, बट क्लोज कांटेक्ट नहीं होता. तो अभी क्या है, अभी हमें सुबह उठ करके पता है कि लाइक एक दूसरे का क्या बिहेवियर है, एक दूसरे को अच्छे से जान भी रहे हैं. हमारे एक दूसरे के स्केड्यूल्स जो मतलब जो अपने आप बन जाते हैं, तो हमारे स्केड्यूल्स एक दूसरे को समझ में आ जाते हैं कि कैसे काम करें क्या. दिस इज समथिंग आई वुड से हम लोग को बहुत ले रहे हैं, बिकॉज इट हैज लॉट्स ऑफ, obviously it has lots of flaws. I don't find porn because definitely you want to know each other well after getting into like Jeevan Sathi ke through. It is in a way arranged marriage setup, so you want to know each other, and it's like has lots of flaws, no doubt. You're sitting back and working. कितना कोई एक हफ्ते की या 2 हफ्ते की छुट्टी लगा के करेगा भी क्या, कहाँ जाना है. तो कोई बात नहीं, but at least we are together. This is more important. Yeah. So this is the kind of honeymoon you guys have got at your respective homes. With the laptop. हनीमून मतलब मुझे समझ में नहीं आता है ना हनीमून का कॉन्सेप्ट, के हनीमून क्या होता है. लाइक यू ओनली नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर. 5 दिन में क्या जाके तुम समझ लोगे. और वैसे भी लोग पता नहीं सिंगापुर और मतलब नो डाउट हम भी मतलब इजिप्ट का हमारा प्लान था, बट लोग अलग अलग जगह जाते हैं, मतलब वो अलग घूमने जाते हैं, तो आप टाइम तो स्पेंड करते ही नहीं हो एक दूसरे के साथ. यू जस्ट एक्सप्लोरिंग थिंग्स. तुम अपनी आंखों से देख लो, ये अपनी आंखों से देखती है. व्हाट्स देयर इन कनेक्शन क्या है, कुछ भी नहीं. वो मतलब एक टैबू सा है. So it's rather a better honeymoon period. Spending time with each other. Yeah, और honeymoon So तो अभी बाद अगर में भी हो सिचुएशन सकता है. नॉर्मल, हाँ, हनीमून बाद में हो सकता है. अभी आई थिंक टाइम स्पेंड करने का जो बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, वो काफी हेल्पफुल है, बिकॉज आप 24 आवर अपने पार्टनर के साथ रह सकते हो, उसको समझ सकते हो, और ये बहुत स्मूथ ट्रांजिशन भी होता है आपका इस फेज के अंदर. अदरवाइज आपने वेडिंग किया, मे बी आपने 1 वीक ऑफ लिया, उसके बाद फिर आप अपने वर्क पे चले गए, तो वो थोड़ा सा मे बी डिफिकल्ट हो सकता है. सो आई वुड से कि काफी पॉजिटिव चीज है ये लॉकडाउन की वजह से, because you are getting enough time for each other. बिल्कुल सही बोला. yeah. So nice. What we would also want to know from you guys, Dakshita and Ajay, you can go first on this. कितने सारे हमारे यूजर्स हैं जीवन साथी के, लाखों ही यूजर्स जो कि इस लॉकडाउन के पीरियड में भी अपनी सर्च, पार्टनर की जो सर्च है उस पे जारी रहकर अपने पार्टनर की खोज में हैं. उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे when they are meeting people, when they are talking to people?
or even when they're planning their wedding? So Isha, only one thing, as Mudit already said and Ajay also said, that be transparent, be true, and just be yourself. अगर आप ऐसे हो तो हो, क्रेजी हो तो हो, क्रेजी नहीं हो तो नहीं हो, लाउड हो तो हो, सॉफ्ट हो तो हो, मतलब जो भी हो बट आप हो। बस अपना फर्स्ट इमेज ऐसे ही दिखाना, मतलब क्योंकि फ्लैशी आप नहीं दिखा सकते, 15 डेज से ज्यादा आपसे हो नहीं पाएगा। तो जो भी आपकी जैसी आदत है, आपका अच्छा, आपका बुरा, आप छोटी छोटी बातों में कहाँ क्रैंकी हो जाते हो, आपको कितनी पैम्परिंग चाहिए, आपको पैम्परिंग नहीं चाहिए, सब कुछ बताने का। और मोस्टली टॉक करने का अपने चाइल्डहुड पे, कि कैसे कैसे आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, आप कैसे कैसे बैकग्राउंड से आते हो, ये बहुत ज्यादा एक पता होना चाहिए आपके पार्टनर को। वाई आई एम सेइंग कि उनको ये पता होना चाहिए, उससे आपका कल्चर दिखता है कि आप कैसे आते हो, प्लस आपकी मेहनत भी दिखती है कि आप कितना मेहनत करके यहाँ तक आते हो। सो दैट सामने वाला पर्सन, जो भी आपका पार्टनर है, वो आपको रिस्पेक्ट करे, आपकी मेहनत देखे, और आपकी मेहनत को उतना ही रिस्पेक्ट करे जितनी एक्चुअली आप डिजर्व करते हो। बिकॉज ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम everyone is working and during working from home, एक दूसरे को उतना ही टाइम देना, वर्क के लिए भी, और उतना ही टाइम एक दूसरे को देना। सो आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड। और जो भी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, आप अपने लाइफ पार्टनर से जो भी चाहते हो, जैसे मैंने मॉर्निंग टी चाहिए और मुझे मिली, तो जिसको भी जो चाहिए अपने पार्टनर से, आई थिंक वो फर्स्ट प्लेट पे वही बातें रखनी चाहिए। उससे प्रोसेस बहुत ही स्मूथ होता है, बहुत ही अच्छा होता है, और आई थिंक उससे चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। बिकॉज कहने तो एक बहुत छोटी चीज है कि चाय चाहिए मॉर्निंग पे, बट यू नेवर नो ये किसके लिए कितनी बड़ी और कितनी सेंसिटिव चीज हो सकती है। ऐसे सोनाली के लिए शायद कुछ एक छोटा सा हो सकता है, बट उनके लिए बहुत सेंसिटिव हो सकता है, पर लोगों को सुनने में ऐसा लगेगी बहुत छोटी सी चीज है। इसलिए जितनी भी छोटी चीज आपको चाहिए, आपको आई थिंक प्लेट पे पहले ही रख देनी चाहिए। आई थिंक आई वुड एग्री कि अपनी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट रखनी चाहिए अपने पार्टनर से, फ्यूचर पार्टनर से। और कोविड टाइम की वजह से आई थिंक कोई चीज स्टॉप नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि द शो मस्ट गो ऑन। आपको कंडीशंस के हिसाब से फ्लेक्सिबल होना चाहिए हमेशा, एंड दैट वुड हेल्प यू, because just because of this pandemic there are some constraints, but there are a lot of positive sides as well. For example, you have enough time for yourself, you're working from home, you're maybe traveling time, so that time you can invest with your future partner. और आई थिंक इसको बिल्कुल एक शो स्टॉपर की तरह नहीं लेना चाहिए। आई थिंक you should keep doing what you want to do for your future. It could actually eventually help you. Those are some beautiful positive thoughts from Rakshita and Ajay. हमारे सभी यूजर्स को मैं बताना चाहूंगी कि हम लोग जल्द ही आपके क्वेश्चन अब लेना शुरू करेंगे, right after we get these tips from Sonali and Mudit as well. Sonali and Mudit, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारे जीवन साथी के यूजर्स को? I would say कि don't take it heavily. What personally I did was like I did not took it heavily. It's like मतलब जिस चीज में आ रहे हो, don't keep it as a dating site or something. Please take it बस कुछ नहीं, बस एक serious way में, serious motive के साथ आओ. Don't take it as fun. बाकी कुछ heavily मत लो, अपने आप things will start falling in place. मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, it's very something hype or something. अपने आप things will fall into, you be serious towards it. You don't have a fun time. और दूसरी चीज, हाँ इस लॉकडाउन और पैंडेमिक टाइम में इट्स लाइक हैपनिंग कि अरे हम मिल नहीं पाएंगे, कैसे होगा। तो लेट मी टेल यू, देयर इज एन एग्जांपल सिटिंग हियर, वी वर जस्ट ऑन व्हाट्सएप एंड जीवन साथी मैसेजेस, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आज हम उससे क्रेडिट देते हैं कि हम, कई लोग होते हैं जो मैसेजेस में एक दूसरे को जान नहीं पाते, हम एटलीस्ट मैसेजेस में पहले एक दूसरे को जान गए। जब मैसेजेस जान सकते हैं तो मिलना तो और भी इजी रहेगा बाद में। तो डोंट टेक इट हेविली, आराम से मैसेजेस पे जानो और आगे बढ़ो। और शादी भी अच्छा ये लॉकडाउन में हो जाए, इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट, हाँ थोड़ा स्ट्रेस होगा लेकिन सिंपली हो जाएगी। एंड आज की मुझे लगता है यूथ, एवरीवन डजंट वांट पॉप एंड शो के साथ शादी, दे वांट कि हाँ सिंपल वे में हो जाए।
इट्स फाइन, लॉकडाउन में शादी कर लो। तो सोनाली की बात से, इसी बात से मैं आगे बढ़ते हुए बोलूंगा कि अगर आप अपने आप को एक कन्फाइंड वे में, लाइक आज आप मिल नहीं सकते, पर्सनली बात नहीं कर सकते, ठीक है, वीडियो चैट आ गया है, ओके, वीडियो चैट में आप जब बात करो तो फेस के एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाता है कि सामने वाले को बात आपने कैसे बोली। बट अगर आप मैसेज पे भी हो तो आप अगर उस वक्त समझ रहे हो एक दूसरे को तो बात भी अच्छे से समझोगे। और रही बात कि क्या बात करे, या यहाँ की बात या वहाँ की बात, वो अपने आप ही अंदर से आएगी, तो आपको ना बातें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। गर्ल्स हैव दैट इन बिल्ट। हाँ, मतलब चाहे वो गर्ल्स की हो या कई लड़के भी ऐसे होते हैं जो बहुत बातूनी होते हैं, बहुत बात करते हैं जैसे, ठीक है, तो आपको बातें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो अपने आप से अंदर से आ जाती है। आप क्या करते हैं, क्या रोजमर्रा की बातें हैं, आजकल जैसे कुछ ज्यादा होता भी नहीं है, इंसान घर पे तो बैठा रहता है, कुछ ना बाहर जा रहा है, कोई इंटरेक्शन नहीं है दूसरे इंसान के साथ, तो कोई बात इतनी बनती भी नहीं है, तो उसको ऐसा बोरिंग सेटअप मत लो कि हम क्या करें, कोई बात ही नहीं है। हाँ, तुम्हारी लाइफ में भी कुछ नहीं होता, सामने वाले की लाइफ में भी कुछ नहीं है। जस्ट टॉक अबाउट के आप फ्यूचर में क्या करेंगे, या मे बी आप जो लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, हाउ डू यू फील कि आप कैसे अब और अच्छा कर सकते हैं अपने लिए भी, या आप दोनों अगर साथ में हैं, कोई भी दो जने जो बात कर रहे हैं, तो आप दोनों भी इस चीज को आगे नेक्स्ट स्टेप कैसे लेकर के जाएंगे। ये टेम्पररी है, इट विल लास्ट ओनली लाइक मे बी more than 4-6 months more. If a vaccine आ जाएगी, then everything will fall into place again. And you guys can Well, yeah. Cheers to life getting back to normal. अब मैं quickly कुछ questions आपके लिए share करना चाहूंगी. Many people have asked questions कि जब initially conversations शुरू होती हैं, chit chat करना, आप किसी के साथ शुरू कर रहे हैं, तो टॉपिक्स ऐसे क्या होने चाहिए जिन पे की बात करना आसान है. एंड आई थिंक रक्षिता टच्ड अपॉन दिस व्हेन शी सेड कि थोड़ा अपने चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में बात करिए. हाउ इज इट दैट आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, what events in your life have made you a certain type of person. But can we have some more, let's say, ideas? आप लोगों की conversations में ऐसे क्या topics थे? Would you like to give some tips around that? Yes, ईशा, स्टार्टिंग में आई थिंक हमारे टॉपिक्स थोड़े वर्क रिलेटेड ज्यादा थे. वर्क रिलेटेड बातें ज्यादा होती थी इनिशियली कुछ डेज में, wherein I used to explain my work, he used to explain his work. ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल पे हमारा डिस्कशन हुआ है, और आई थिंक वर्क रिलेटेड चीजें भी डिस्कस करनी चाहिए. इससे आपको आपके दोनों के प्रोफेशनल गोल्स अलाइंड होते हुए दिखते हैं, दैट व्हाट एग्जैक्टली यू वांट फ्रॉम लाइफ, what exactly your stability is, and आप क्या करना चाहते हो, वो क्या करना चाहते हैं, वो सब कुछ दिखता है, वो सब कुछ आई थिंक वो समझ में आती हैं वो सारी चीजें. और अगर आपकी हॉबीज एक जैसी हो, जैसे we both love traveling, like we are the crazy peaks when it comes to traveling, so he can talk more about it when it comes to traveling. So I think yeah, so topics, initial topics could be your work, your interest, your passion, and what are your future goals, what are your family requirements. I think ये कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हो स्टार्टिंग में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एक दूसरे को जानने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं. Absolutely. और एक चीज अजय की बात से मैं आगे लेकर के जाऊंगा, व्हेन इट कम्स टू फैमिली, सो कई लोग होते हैं जो ना काफी चीजें, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी चीजें आप एकदम से बताओ, बट बी ट्रू, जो भी आपका फैमिली का डायनेमिक्स है ना, वो आपको सामने वाले बंदे को बताना चाहिए, सो दैट वो भी बंदा समझ पाएगा कि मे बी आपका नेचर इस वजह से क्यों है या कैसा है. आप अगर हमेशा एक रोजी या एक गुड पिक्चर दिखाओगे और बाद में जाके वो एक अलग पिक्चर दिखेगी, तो वो एक मिक्स मैच हो जाएगा कि द वे यू सेट थिंग्स, और जो वो परसीव करके अगला बंदा आपसे शादी करी या जो भी हुआ, या जो भी मतलब मे बी यू स्टार्ट डेटिंग और रिलेशनशिप में भी जो भी होता है, तो आपको ना हमेशा एक ट्रू पिक्चर दिखानी चाहिए. लाइक आई ऑलवेज वेंट बैक टू सेइंग दैट ट्रू पिक्चर, तो वही सच्चाई के साथ दिखाना चाहिए. और मतलब कैजुअल टॉक, मतलब फ्यूचर गोल्स भी अगर करने तो पर्सनली कर लो, इतना भी नहीं कि अंबानी बनना है. हाँ ठीक है, सबको बनना है. कैजुअल रख करके, और मतलब अपनी इंटरेस्ट, हॉबीज, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट और हॉबीज को डिस्कस करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि हमारा शेड्यूल प्रेजेंटली क्या चल रहा है, हम किस तरह इस चीज को ले रहे हैं, हम मतलब हाउ आर वी इन टेकिंग द प्रेजेंट ऑनगोइंग सिचुएशन एज वेल,
और हम सुबह से रात तक घर पे लाइक पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, पीपल आर इवन नॉट, बट व्हाट आर दे एग्जैक्टली डूइंग द होल डे लॉन्ग, ये सब चीजें ओपनली बताओ। मेरे हिसाब से बहुत टाइम इसी में लग जाएंगे एंड यू स्टार्ट नोइंग ईच अदर एज वेल कि हाँ सामने वाला ऐसे है, मतलब ऐसे मेरी जम सकती है इसके साथ क्योंकि ऐसा है। और एक दूसरे के साथ वक्त निकालना, एक दूसरे के लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है। कई लोगों को ऐसा परसेप्शन होता भी है कि जब फोन आएगा तब देख लेंगे। यार मतलब आप घर पर हो तो कोई भी काम आ सकता है, कोई भी काम जरूरी हो सकता है। ऑफिस में भी आपको ऐसे टाइम तो रहा नहीं है कि ऑफिस का ये टाइम है, कई बार ऐसी मीटिंग आती है जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो वक्त निकालो एक दूसरे के लिए, और एक टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चल सकते तो, लेकिन वक्त निकालना बहुत जरूरी है। अपने पूरे दिन में से वक्त जरूर निकालो एक दूसरे के लिए, कि उस वक्त मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ आपको ही वक्त दूंगा। वो एक छोटे छोटे ना एफर्ट्स होते हैं, वो मतलब दैट काउंट्स, दोस एफर्ट्स रियली काउंट्स इन द एंड। जैसे रक्षा के बता रही थी, अजय आता था तो वीकेंड्स पे उसके लिए आता था, देन अर्ली फ्लाइट लेता। वो छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं, रक्षा विल ऑलवेज रिमेंबर अजय का। ब्यूटीफुल। सो चाहे कोर्टशिप पीरियड हो या वेडिंग के ड्यूरिंग कुछ प्रेपरेशन चल रहे हो या आफ्टर वेडिंग का सिचुएशन हो, डेफिनेटली इम्पोर्टेंट लाइक यू गाइस सेड, वक्त निकालना बहुत जरूरी है, एफर्ट डालना बहुत जरूरी है, और उसको एक जेन्युइन ऑनेस्टी के साथ उस रिलेशनशिप में अपने लिए एक नया बॉन्ड क्रिएट करना एक नए बंदे के साथ, जिसके लिए टॉपिक्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम वर्क, पैशन एंड इंटरेस्ट इन द बिगिनिंग टू टॉकिंग अबाउट योर फैमिली डायनामिक्स, फैमिली मेंबर्स का कैसा नेचर है एट अ लेटर स्टेज। वो आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली एक बंदे के साथ डेवलप करनी है कॉन्वर्सेशन, ताकि एंड वो जज करना है कि किसके साथ कब किस बात को आप शेयर कर सकते हो, किसके साथ आपकी बात आगे बढ़ के कंपैटिबिलिटी आपको सेट होती हुई दिख रही है, किन टॉपिक्स पे सेट होती हुई दिख रही है, और वो टॉपिक्स पे जहां आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेदर दे आर योर लाइफ गोल्स फ्रॉम अ वर्क पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, और इमोशनल टेस्टिंग एंड इमोशनल कंपैटिबिलिटी। लाइक यू गाइस मेंशन, एक जिगसॉ पजल के लिए जैसे आपको एक फिट चाहिए एक पार्टनर के साथ, देयर विल बी इनफ ऑफ टॉपिक वेयर आपको पता लगेगा कि ये कितना अच्छा फिट है, कितना कंपैटिबल है आपके लिए। So that's a beautiful thought. Just a quick question which some people are asking and then we'll wrap up. Lockdown में lockdown stress के साथ, in a way lockdown stress, and you guys can tell us whether it was stress or not, but इस stress के साथ अपनी marriage की journey शुरू करना, was it a good thing or a bad thing? For us, it was a really good thing because, as I said earlier, stressful तो है और कई सारे constraints भी हैं, but positive sides भी बहुत हैं। जैसे कि आपको time मिलता है साथ में spend करने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए, और ये transition phase जो होता है वो बहुत smoothly जाता है आपका। So overall, I would say कि it was a very good thing for us. And I think self thought के ऊपर है कि हम इसको positively stress में ले, negative ले, क्योंकि जितना हम इसको स्ट्रेस में लेंगे आई थिंक हम एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाएंगे कोई भी हैपनिंग चीज, क्योंकि वो स्ट्रेस में इतनी नेगेटिविटी होगी कि एक पॉजिटिव स्टेप हम ले ही नहीं पाएंगे। सो राइटली मेंशन बाय अजय दैट उसके सिर्फ पॉजिटिव चीजें देखो, एज सोनाली एंड मुदित गेटिंग टाइम फॉर ईच अदर, आई एम गेटिंग टाइम विद अजय, स्केड्यूल हमारा मैप हो रहा है धीरे धीरे। We can have 3 meals together. This is a most luckiest part of this COVID-19. As Isha, I know even you cannot imagine having 3 meals with your husband. So having 3 meals with your spouse, that too in this particular time, I feel like this is a blessing thing. This is a blessing thing. Yeah, that's a huge blessing. I would agree. That amount of time that we are able to get for ourselves as well as for our partners, वो एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइड है देखने के लिए। एंड इट्स ऑल अबाउट आउटलुक। अगर आपका आउटलुक पॉजिटिव है, यू विल फोकस ऑन दोस थिंग्स, राइट सोनाली एंड मुदित, डू यू आल्सो एग्री? या स्ट्रेस तो आपको हमेशा ही रहेगा जिंदगी में, किसी ना किसी बात का हमेशा होगा। इट्स जस्ट अबाउट कि हाउ यू थिंक एंड हाउ यू कोप विद इट। आप उससे कैसे निकल के बाहर आना चाहते हो। इट्स जस्ट अबाउट दैट आउटलुक व्हिच यू ऑलरेडी स्पोकन अबाउट। इट्स टोटली अबाउट द माइंडसेट एंड आउटलुक। तो ये इतना कोई बड़ी बात नहीं है, हर बार किसी ना किसी चीज का स्ट्रेस होगा। अभी तो ये लॉकडाउन या ये कोविड सिर्फ एक मेरे साथ या अजय
और रक्षिता या ईशा के साथ या जो भी इस सेशन में देख रहे हैं सुने उनके साथ ही सबके साथ है। तो इतना बड़ा इस चीज को मतलब इतनी बड़ी चीज ना बनाए और बिल्कुल नॉर्मल रहे। Beautiful. So those are the beautiful thoughts जिनके साथ हम अपना सेशन कंक्लूड करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल आवर व्यूअर्स जिन्होंने हमारे साथ ये 1 घंटा बिताया संडे का शाम। I hope you guys have a beautiful week ahead. Congratulations once again to Sonali, Mudit, Rakshita and Ajay for your marriage, and wish you guys a beautiful and happy and long married life way ahead here. Thank you so much all of you. Have a great time. Bye bye.